Good day to all of you. This is Imran Ul Haq with a new reading video, and today it is book 19. You can see, and reading passage 3. You see in this one, reading passage 3, and this one, the unselfish gene. Okay. Let's start without wasting a moment. Okay, we are going to see the questions. What type of question are given here? You see, these are multiples. Okay, multiples are before you. Okay, these are multiples. Okay, and you can see 27 to 30. Write the correct letter in boxes 27 to 30 on your answer sheet. As you know, we are not in the official IELTS exam. That's why we don't have any answer sheet. We'll write down the answer in front of these options or circle any of the given option. So 4 options are given. You can say these are the long multiples. These are sometimes become nightmare for the new students. That's why practice makes a man perfect. You must practice hard before appearing in exam. Okay, let's start. First of all, what is the writer doing in the first paragraph? You see, the first paragraph is the keyword. Okay, that will give you a clue to go straight to the very first paragraph. तो हम first paragraph जो है उसको ही हम go through करते हैं जी, कि हमारे पास पहला paragraph क्या है. This is our first paragraph. You can see there has been long a general assumption. General assumption means a common belief that human beings are essentially selfish. That is the common belief that the human beings, individuals, are naturally selfish. We are apparently ruthless. We are cruel, with strong impulses to compete against each other for resources. We compete also with each other for resources to accumulate power and possessions. Just we want to get property and accumulate power, money. हम ये सारी चीजें इकट्ठा करनी चाहते हैं. पोजेशन हो, प्रॉपर्टी हो, पावर हो, रिसोर्सेज के लिए हम लड़ते हैं. वी आर काइंड वन अनदर. अगर हम एक दूसरे के साथ हमदर्द होते, इट्स यूजली बिकॉज वी हैव अल्टीरियर मोटिव्स. तो हमारे फिर भी कुछ हिडन मोटिव्स होते. वी शुड हैव सम हिडन मोटिव्स, alternative motives. Okay, if we are good, it's only because we have managed to control and transcend our innate selfishness and brutality. Because अगर हम अच्छे होते हैं तो उसकी वजह यह है कि हमने मैनेज कर लिया है कंट्रोल करना और अपनी जो फितरती सेल्फिशनेस है और ब्रूटैलिटी है उसको. ब्रूटैलिटी. ओके, सो लेट्स सी. setting out two opposite views. Not two opposite views of human nature is given. Okay, not two opposite views. Okay, so this is the one which we eliminate. Justify his opinion about tendency to be greedy. Not he is justifying any of his opinion in this paragraph, so that is also the elimination. Describing a commonly held belief. Yes, as I told you, commonly held belief about the people's behavior. So this is the most prominent one. As you know, he is talking about the human being's behavior, and that is a common assumption. Okay, that is a common assumption, and you can see here the common assumption is given here. Yes, you can see there has been a general assumption, that is a common assumption of human beings, and that is given also in the this option. Commonly held belief. You can see commonly held belief about human behavior is also given. Okay, so this is the option explaining why he thinks the selfish manner. This also elimination. Okay, the next thing we see, what point is made about Richard Dawkins book द सेल्फिश जीन. सेल्फिश जीन जो है रिचर्ड डॉकिंस बुक, उसके बारे में क्या बात की गई है. ठीक है जी, सो क्या बात की गई है हम देखते हैं जी. और सो दीज आर द keywords. I have underlined them as well. That will favor you to, get the answer without losing your time. Okay, let's start the second paragraph where the selfish gene is given. Okay, this is the book also. We'll check. Yes. Okay, the bleak view. What is the bleak? The gloomy view, the sad view of human nature is closely associated with the science. Writer Richard Dawkins,
whose 1976 book The Selfish Gene became popular. उसकी ये बुक थी, ये पॉपुलर हो गई, became famous as well because it fitted so well with and helped to justify the competitive and visualistic ethos that was so well with and helped to justify the that was so prevalent in the 20th century science. Like many others, बहुत से दूसरे साइंसदान जो थे उनकी तरह Dawkins justify his views with reference to the field of evolutionary psychology. Dawkins जो थे justifies, he proves his stance as well. So this is the meaning of justify. उसने अपने व्यू को जस्टिफाई किया, उसका जवाब पेश किया, दुरुस्त साबित किया विद रेफरेंस टू द फील्ड ऑफ एवोल्यूशन साइकोलॉजी. एवोल्यूशन साइकोलॉजी है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो है उसके फील्ड से रेफरेंस, उसके हवाले के साथ. ठीक है जी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी. अब उसने अपना जो व्यू पॉइंट है वो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के फील्ड के रेफरेंस से ठीक साबित किया. अब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या है? एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी theorizes that present day human. अच्छा जी, अब वो क्या कहता है कि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी theorizes, ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये थ्योरी पेश करती है कि दैट प्रेजेंट डे ह्यूमन ट्रेट्स, कि अब मौजूदा दौर में जो इंसानी खूबियां हैं डिवेल्प्ड इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स, कि ये प्री हिस्टोरिक टाइम में पैदा हुई ड्यूरिंग व्हाट इज टर्म द इन्वायरमेंट ऑफ एवोल्यूशनरी अडॉप्टेडनेस. ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं जी, यहाँ पे सेकंड है इट्स अपील ले इन द रेडिकल नेचर ऑफ द आइडियाज. हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि इट्स अपील है, रेडिकल नेचर है, कहीं पे भी ऐसा तो नहीं है, रेडिकल नेचर कहीं पे भी नहीं दी गई. ठीक है जी, इट्स सक्सेस वाज ड्यू टू द साइंटिफिक सपोर्ट इट ऑफर्ड. साइंटिफिक सपोर्ट की भी बात नहीं यहाँ पे की गई, तो ये देख लें. It presented a view that was in line with the attitude of the people. ये देखें, इस किताब में से एक व्यू पेश किया गया that was line, जो कि बिल्कुल वैसे ही था. कैसे? with the attitude of the time, वक्त के रवैये के साथ साथ. बिल्कुल वही है कि उसने अपना वो व्यू पेश किया जो वक्त के रवैये के बिल्कुल साथ था, बिल्कुल वैसे ही था. मसलन आप देख लें यहाँ पे. ठीक है जी, अब देखिएगा इसको जरा. Like many other, Dawkins justifies his views. उसने अपने व्यू को जस्टिफाई किया with reference to the field of evolutionary psychology. एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का फील्ड जो था उसके साथ उसने जस्टिफाई किया. तो फिर क्या कहता है ये भी देख लें यहाँ पे कि प्रेजेंटेड अ व्यू, उसने व्यू पेश किया है ना जी, ये देखें. Dawkins justifies view with reference to the field of evolutionary psychology. तो क्या कहता है कि with that was in line with the attitude of its time. बिल्कुल वो पेश किया है जो कि वक्त के रवैये के साथ मुताबिकत रखता है. तो ये भी देख ले कि उसका जो रवैया था with reference to the field of evolutionary psychology, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का जो फील्ड था बिल्कुल उसके साथ मुताबिकत रखता था. ठीक है जी, और evolutionary psychology theorizes that present human traits developed. तो जो evolutionary psychology ने थ्योरी क्या पेश की थी कि मौजूदा इंसान जो हैं उनकी ट्रेड्स जो हैं वो प्री हिस्टोरिक टाइम में डेवलप हुई थी. ठीक है जी, वही उसने कहा है और वही प्रेजेंट डे की जो थ्योरी है, ठीक है जी, वो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ने कहा है. तो इसका मतलब है कि वो अपने व्यू को जस्टिफाई कर रहा है इस व्यू के साथ. तो ये It presented a view that was in line with the attitude of the time. तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो आ रही है. नेक्स्ट है हमारे पास It took an innovative approach to. कहीं पे भी कोई इनोवेटिव जदीद अप्रोच का वहां पे कोई जिक्र नहीं है. What does the writer suggest about the prehistoric era in the fourth paragraph? Now go straight to the fourth paragraph and check what does the writer suggest about the prehistoric era. We'll check what does in the fourth paragraph. This is the fourth paragraph. You can see 1 2 3. This is the fourth. It is important, this one, it is important to remember that in prehistoric era, yes, prehistoric era is given. Era we can say also, era you can say also, both are correct. The world was very sparsely populated. It was not densely populated, you can say. According to some estimates, कुछ अंदाजों के मुताबिक around 15,000 years ago, 15,000 साल पहले, द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वॉज ओनली 29,000.
The population was 29,000 and the population of the whole world was less than 500,000 and the total population of the world was less than 500,000. Humans at that time were hunter-gatherers. Humans beings were hunters, people who lived by hunting wild animals and collecting wild plants. So people who believed in hunting, who lived on by hunting, okay, they hunt animals and collect wild plants also for their survival. With such small population densities, and there was not much population densities, it appears unlikely that there was not chance that prehistoric hunter-gatherer groups had to compete against each other for resources, because the population was very scarce and there were not chances that they used to fight with each other, okay, they used to compete with each other, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा थे और आबादी कम थी। तो कहता है कि कोई अनलाइकली, इट सीम्स अनलाइकली, तो चांसेस बड़े कम थे कि प्री हिस्टोरिक एरा में वो compete against each other for रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे का मुकाबला करते, और हैड एनी नीड टू डेवलप रुथलेसनेस, या फिर वो कोई क्रूएलिटी जो थी उसको डेवलप करते, या कंपेटिटिवनेस, या वो मुकाबला करते, ठीक है, और गो टू वार, या फिर वो इन रिसोर्सेज की खातर वो उनके खिलाफ जंग करते, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी, ये तीसरा है हमारे पास, सोसाइटीज वर मोर कम्प्लेक्स। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि सोसाइटीज वहां पे कम्प्लेक्स नहीं, हमने सारा उसको पढ़ा है पैराग्राफ को। सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वर प्रॉब्ली, यस यू कैन से दिस वन, सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वर प्रॉब्ली relatively plentiful. Why the resources are plentiful? Because the population was less and they didn't fight with each other. That was the proof that even though the population was less and there was no need to fight for the uh, resources because they were plentiful. And now you can see this here, it seems unlikely that prehistoric hunter-gatherer groups had to compete. It seems unlikely, there were not a chance, okay, it seems impossible that the prehistoric hunter-gatherer groups, ये जो prehistoric history से पहले के hunter-gatherers थे, वो आपस में compete करते थे, किसके लिए? फॉर रिसोर्सेज के लिए, और हैड एनी नीड टू डेवलप रुथलेसनेस और कंपेटिटिवनेस, ना ही वो कोई क्रूएलिटी की तरफ जाते थे, कंपेटिटिव की तरफ जाते थे, ना वॉर की तरफ जाते थे। तो इसकी वजह यही है कि वो रिसोर्सेज की खातर नहीं लड़ते थे, तो रिसोर्सेज जो थे वो प्लेंटिफुल थे, तो प्रॉब्ली रिलेटिवली प्लेंटिफुल। सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वी विल रीड डाउन the other two options as well. Most estimates that about population sizes are likely to be inaccurate. Nowhere mentioned that the population was inaccurate, okay, this one also eliminated. Human move across continents even not mentioned continents, so B is the best option, okay, so we click that option, okay, you see this one, B is the best option, okay. Let's move toward the last one. The writer refers to the Bruce Naft's work as support for the idea that, writer refers, जो मुसन्नफ है वो ब्रूस नाट्स जो उसका बुक है या काम है उसका हवाला देता है एज सपोर्ट फॉर द आइडिया, किसी आइडिया की सपोर्ट में। तो कौन से आइडिया की सपोर्ट में वो हवाला देता है, हम ये देखते हैं जी, ठीक है जी। और ब्रूफ नाफ्स है हमारे पास, तो हम देखते हैं जी ब्रूफ नाफ, ठीक है, हमारे पास है जी ब्रूफ नाफ, ये है ब्रूफ नाफ, ठीक है जी, ब्रूफ नाफ है। As the anthropologist, one who loves human being, okay, who has kind feelings for the human being, Bruce Naft has remarked, he said, hunter-gatherers are characterized by extreme, they were categorized by extreme political and sexual egalitarianism. Egalitarianism means equity, equitable, okay, equality, okay. So वो क्या कहता है, नाफ हैज ऑब्जर्व्ड, सॉरी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो ब्रूस था उसने कहा कि हंटर गैदरर जो है उनको कैटेगराइज किया जाता है कैसे, एक्सट्रीम पॉलिटिकल एंड सेक्सुअल एग्लिटेरियनिज्म से, ठीक है जी, एक एक्सट्रीम सियासी और जो सेक्सुअल जो इक्विटी है उसके लिहाज से उनको कैरेक्टराइज किया जाता है, ठीक है जी, उसके लिहाज से उसको
करेक्टराइज किया जाता है, आप देख लें। और फिर नाफ हैज ऑब्जर्व दैट इंडिविजुअल इन सच ग्रुप्स डू नॉट अकाउंटेबल प्रॉपर्टी और पोजेशन। ओके, नाफ हैज ऑब्जर्व्ड, नाफ ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इन सच ग्रुप्स, इन ग्रुप्स में डू नॉट एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी और पोजेशंस और जो बिलोंगिंग्स हैं, जायदादें हैं, वो इकट्ठी नहीं करते। एंड हैव एन एथिकल ओब्लिगेशन, बल्कि उनका तो एक इखलाकी फर्ज है टू शेयर एवरीथिंग, कि वो हर चीज को शेयर करते हैं। दे ऑल्सो हैव मेथड, और मेथड ऑफ प्रिजर्विंग एग्लिटेरियनिज्म, वो तो बिलीव करते हैं जो बराबरी है, मसावत है उस पर, बाय इंश्योरिंग दैट डिस्पैरिटीज ऑफ स्टेटस डू नॉट अराइज, ताकि लोगों में फर्क ना पड़े, लोगों में तफरका ना पड़े, इसलिए वो बराबरी पे यकीन करते हैं। तो चले हम देखते हैं जी, सेल्फिशनेस इज रिलेटिवली अ रीसेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन सोसाइटीज। अगर इसको देखा जाए, इसको तो हम इसको एक मिनट देखते हैं कि सेल्फिशनेस जो है ना जी, वो तो एक रीसेंट डेवलपमेंट है इंसानी मुआशरों में, कि हाल ही में ये जो खुद गर्जी है वो पैदा हुई है, पहले नहीं थी। अगर हम देखते हैं इसको थोड़ा सा, बाकी देख लेते हैं। ओनली पीपल इन आइसोलेटेड कम्युनिटीज़, कहीं पे भी नहीं है कि आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ हैं कैन लिव इन अनसेल्फिश मैनर, कहीं पे भी ये जिक्र नहीं हुआ। फिर है वेरी फ्यू लाइफ स्टाइल्स, कहीं पे लाइफ स्टाइल्स का जिक्र नहीं हुआ, हमने देखा है लाइफ स्टाइल का जिक्र नहीं हुआ। हैव सर्वाइव्ड अनचेंज्ड प्री हिस्टोरिक, इसका भी जिक्र नहीं हुआ। हंटर गैदरर कल्चर्स वर्ल्ड वाइड आर डिक्लाइनिंग, कहीं पे है कि वो डिक्लाइन कर रहे हैं, नहीं है। तो एक ये चीज़ है, ये क्या है, सेल्फिशनेस इज रिलेटिवली रीसेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन सोसाइटीज़, कि ये अभी पैदा हुई है, पहले सेल्फिशनेस नहीं थी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये कहता है कि ऑब्जर्व्ड दैट इंडिविजुअल इन सच ग्रुप डू नॉट एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, कि ये जो प्री हिस्टोरिक एरिया था, इसमें ये जो हंटर गैदरर ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये जमा नहीं करते थे प्रॉपर्टी और पोजेशन को, बल्कि ये अपना इखलाकी फर्ज समझते थे कि चीज़ों को शेयर करें। और दे ऑल्सो हैव मेथड, वो बराबरी पे यकीन करते थे, ताकि कहीं पे कोई स्टेटस की डिस्पैरिटी है वो राइज ना हो। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें तो पहले थी, इसका मतलब है कि सेल्फिशनेस जो है वो रीसेंट डेवलपमेंट ही होगी। सेल्फिशनेस इज रिलेटिवली रीसेंट डेवलपमेंट इन द ह्यूमन बीइंग। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास डेवलपमेंट हुई है सेल्फिशनेस की, ये पहले नहीं थी, खुद गर्जी नहीं थी, लोग इंसाफ पे, बराबरी पे यकीन करते थे, ये तो फिर बाद में हुई है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे जी जो मल्टीपल्स हैं वो। तो अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कंप्लीटिंग समरी है हमारे पास, ये इसको हम देखते हैं जी। कंप्लीटिंग समरी है हमारे पास, वन वर्ड ओनली, okay. So contemporary hunter gatherers societies, so these are the keywords we'll check. Okay, Bruce Knopf's research shows that contemporary hunter gatherers societies tend to exhibit a high level of in all areas of life. We have just finished this, okay. उसकी रिसर्च ये बताती है कि कंटेम्प्रेरी हंटर गैदरर जो सोसाइटीज है ना, वो दिखाती थी बहुत हाई लेवल का, कोई चीज़ हाई लेवल की इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। तो हमने पढ़ा था, ये देखें, एज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रूस नाफ्ट हैज रिमार्क्ड, ये ब्रूस नाफ्ट, ठीक है, इसकी वो बात कर रहा है, क्या कहता है हंटर गैदरर्स आर करेक्टराइज्ड बाय, हंटर गैदरर्स जो थे उनको करेक्टराइज किया गया था, कैटेगराइज किया जाता था एक्सट्रीम। अब देखें एक्सट्रीम है, तो यहाँ पे ये हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं, हंटर गैदरर सोसाइटी हैं जी, ठीक है, ये देख लें हंटर गैदरर सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ पे भी देख लें हंटर गैदरर सोसाइटीज़ है, तो ये हंटर गैदरर हैं जी, ठीक है, ये देख लें हंटर गैदरर आर कैरेक्टराइज्ड है एक्सट्रीम पॉलिटिकल, और देखें एक्सट्रीम है तो हमारे पास हाई लेवल है, ठीक है जी। इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ है, तो आप देख लें यहाँ पे एरियाज ऑफ लाइफ हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि ये है हमारे पास करेक्टराइज्ड एक्सट्रीम पॉलिटिकल, ये एरियाज ऑफ लाइफ हैं, सेक्सुअल, ठीक है जी। तो ये करेक्टराइज कैसे उनको किया जाता है, एग्लिटेरियनिज्म के मुताबिक तमाम एरियाज में, कि तमाम सेक्सुअल और एक्सट्रीम पॉलिटिकल जो एरियाज हैं वहाँ पे एग्लिटेरियनिज्म हो, इक्विटी हो, बराबरी हो, तो हमारे पास, ठीक है जी, आ रहा है। आप स्पेलिंग जिस चीज़ के ना समझ आए तो वो हम आप याद रखिएगा
EG आप देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, EGLITARRIANISM, ये आपने याद रखना है। स्पेलिंग्स गलत होंगे तो आपका आंसर भी गलत होगा। फिर क्या है, इन दीज कल्चर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज फेयरली, इन कल्चर्स में हम अगर रिसोर्सेज को ईमानदारी से तकसीम करते हैं ना अमंग ऑल मेंबर्स, तमाम मेंबर्स में, इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन। हमने अभी पढ़ा था एथिकल, एथिकल पढ़ा था ना जी, कि वो है दी सोसाइटीज ऑल्सो एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज, ये मुआशरे कुछ स्ट्रेटजीज प्लानिंग भी इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट डिफरेंसेस इन, ताकि कुछ जो तो फ़र्क हैं, हमने पढ़ा था ना जी डिस्पैरिटीज़, ये फ़र्क हैं उनसे बचा जा सके, अकरिंग जो कि वकूफ़ पज़ीर होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जी ये बिल्कुल वही है, हमें आ रहा है नज़र, ये देखिएगा यहाँ पे ये वाला, दे ऑल्सो हैव मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग, यहाँ पे देख लें, ये कहता है कि नाफ है ऑब्जर्व दैट इंडिविजुअल्स इन सच ग्रुप्स डू नॉट एक्यूमुलेट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी पोजेशन जमा नहीं करते, एंड हैव एथिकल ऑब्लिगेशन, भाई उनका एथिकल एप्लीकेशन भी है। तो यहाँ पे अगर देख लें ये मॉरल ऑब्लिगेशन है उनका, ठीक है। फेयरली अमंग ऑल, के वो डिस्ट्रीब्यूट करें रिसोर्सेज तमाम लोगों में बराबरी, बराबर, और ये उनका मॉरल ऑब्लिगेशन था, इखलाकी फ़र्ज था। ये सोसाइटीज़ जो हैं वो कुछ प्लान्स करती हैं, एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज, कुछ प्लानिंग्स जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं टू प्रिवेंट डिफरेंसेस इन, के कहाँ पे डिफरेंसेस पैदा ना हों, ठीक है, प्रिवेंट डिफरेंसेस, ताकि उन डिफरेंसेस से बचा जा सके। अच्छा, दे ऑल्सो हैव मेथड्स, वो और भी कोई मेथड है प्रिजर्विंग एग्लिटेरियनिज्म, ताकि जो बराबरी है उसको कायम रखा जा सके, बाय इंश्योरिंग दैट डिस्पैरिटीज, और ये यकीनी बनाया जाए कि डिस्पैरिटीज ना हों, डिस्पैरिटीज ना हों, यानी यहाँ पे डिफरेंसेस ना हों, ठीक है। कहाँ पे डिफरेंसेस ना आए जी, अब देख लें, डिस्पैरिटीज इन स्टेटस, कहाँ पे ना आए जी, स्टेटस के डिफरेंसेस हों, लोग गरीब ना हो जाएं, ठीक है जी। तो आपने लिखना है जी यहाँ पे स्टेटस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल द कोंग फॉलो अ कस्टम, कोंग जो थे वो एक कस्टम को फॉलो करते थे, वेयर बाय द क्रेडिट फॉर वन पर्सन सक्सेस, के एक पर्सन की जो कामयाबी का क्रेडिट था ना, एट किस पर, किसी चीज पर क्रेडिट वो लेता था, इज गिवन टू अनदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, तो वो किसी ग्रुप के दूसरे मेंबर को दे दिया जाता था। किस चीज का क्रेडिट था जी, वो हमें अब देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जी यहाँ पे कि वो किस चीज का क्रेडिट था। हम देखते हैं, द कोंग पीपल ऑफ साउथ सदर्न अफ्रीका फॉर एग्जाम्पल स्वैप एरोज, स्वैप एरोज थे, ठीक है ना जी। तो वो, ठीक है जी, एरो अपने एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है जी, एक्सचेंज कर लेते थे बिफोर गोइंग हंटिंग, कहाँ जाने से पहले, हंटिंग, यानी शिकार पर जाने से पहले वो अपने एरोस जो लेके जाते थे, तीर लेके जाते थे, उनको एक्सचेंज कर लेते थे किसी और जो कबीला था, किसी और जो ग्रुप था उसके मेंबर से। एंड व्हेन एन एनिमल इज किल्ड, ओके, द अक्लेम डज नॉट गो टू द पर्सन, एंड दैट अक्लेम, दैट प्रेज डज नॉट गो टू द पर्सन हु फायर्ड द एरो। सो ये देखने वाली ये चीज है कि वो जो अक्लेम होती थी, तारीफ होती थी, वो एरो मारने वाले शख्स को नहीं जाती थी, बट टू द पर्सन टू द एरो बिलोंग्स टू, बल्कि उस शख्स को जाती थी जिसका ये एरो होता था जी। तो इस सारे खेल में वो जाते कहाँ थे भला, कामयाबी कहाँ पे होती थी। द कोंग फॉलो अ कस्टम वेयर बाय द क्रेडिट फॉर वन पर्सन सक्सेस एट इज गिवन टू अनदर ग्रुप ऑफ द ग्रुप। तो वो जाते कहाँ थे, एरोज बिफोर गोइंग जाते थे जी वो हंटिंग पे, तो हंटिंग पे जाते थे तो फिर ही कामयाबी मिलती है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हंटिंग, ठीक है, ये लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास आप देख लें, इज गिवन टू नंबर इंडिविजुअल्स हु बिहेव इन, ये देख लें, इनको अंडरलाइन कर लें, इंडिविजुअल्स हु बिहेव इन अ मैनर्स आर पनिश्ड बाय बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप। बिहेव, कुछ लोग थे जो बिहेव करते थे इन्ना, रुथलेसली करते थे, सेल्फिशली करते थे, एंग्रीली करते थे, कैसे करते थे, तो स्टार्ट इमेजिनिंग ऑल्सो करते थे,
आर पनिश्ड, उनको सजा दी जाती थी। कैसे? बाय बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप, दे वर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द ग्रुप। ओके, सो दिस वाज द पनिशमेंट, दे वर expelled. So how did they used to behave? How did they behave? So let's see how did they behave. Okay, so now see G, and if a person became so too domineering, अगर कोई शख्स जो है वो too domineering है, लड़ाई झगड़े वाला है, दबंग बात करता है, यानी डरता नहीं है, उसका रवैया कैसा है? domineering है, behave in domineering। ये देखें, द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑस्ट्रेसाइज देम, तो दूसरे लोग क्या करते थे? उसको निकाल देते थे। ये है एक्सपेल करते थे। तो उसका रवैया कैसा था? डोमिनियरिंग था, इसलिए उसको ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं। एक्साइलिंग, उसको बाहर निकाल देते थे, जलावतन कर देते थे। द ऑफेंडर, उस गलती करने वाले को, फ्रॉम द सोसाइटी। तो जी उसका रवैया कैसा था? एंड इफ अ पर्सन बिकम्स टू डोमिनियरिंग, अगर वो बड़ा दबंग होता, बिहेव इन अ डोमिनियरिंग मैनर। ठीक है जी। ये तो स्पेलिंग जो है वो आपके ठीक होने चाहिए, नहीं तो सारे का सारा लिखा हुआ भी गलत हो जाएगा। ठीक है जी। फिर क्या था? एंड विमेन हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट, ओके, इन चॉइसेस रिगार्डिंग वर्क एंड मैरिज। विमेन जो थी वो हमेशा की तरह उनको चॉइस ही रही है जी। ठीक है, शादी में भी, काम में भी। ये तो अब उनको एक फ्री हैंड दे दिया जाता है। चलिए देखते हैं जी कि उनको कौन सी थी। ठीक है, आप देखते हैं, विमेन इन हंटर गैदरर ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड ऑफन बेनिफिट, वो अक्सर पूरी दुनिया में फ़ायदा उठाती थी, फ्रॉम अ हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी से। कैसे फ़ायदा उठाती थी जी? विमेन हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ किसकी थी? तो हम देखते हैं जी, हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी थी जी। हाई लेवल बहुत ज़्यादा, तो कंसिडरेबल अमाउंट टू काफ़ी ज़्यादा, ऑफ किसकी थी जी? जी, ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारी की ऑटोनॉमी। फिर बीइंग एबल टू सिलेक्ट देयर ओन मैरिज पार्टनर्स, डिसाइड व्हाट वर्क जी, डिसाइड व्हाट वर्क, वर्क का डिसाइड करना, और पार्टनर जो है शादी के लिए उसको सिलेक्ट करने के लिए उनको एक काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी थी। ठीक है जी, तो खुद मुख्तारी थी वो, उनको ये था कि ऑटोनोमी। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर देखें तो येस, नो और नॉट गिवन है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं, इफ द स्टेटमेंट इज मैचिंग with the given information in the text, it is yes, otherwise contradiction means no, and the information is not given, it means not given. Right on full yes, no, and not given. Okay, so let's start. Some anthropologist, we have read an anthropologist as well there, that was Naf Bruce. Okay, keep in mind throughout the text when you skim or swim the text, okay, are mistaken. Some anthropologists are mistaken about the point when the number of societies such as Khung began to decline. Okay, तो कहता है कि कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, पीपल दोज हु हैव काइंड एटीट्यूड और लव फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, दे आर मिस्टेकन, वो गलती पर हैं इस बात के बारे में कि व्हेन द नंबर ऑफ सोसाइटीज सच एज कोंग बिगैन टू डिक्लाइन, किसके बारे में? उन सोसाइटीज़ के बारे में, जैसे कि कोंग है उसकी आबादी कम होने लगी थी, तो इसके बारे में वो गलती पर थे। हम देखते हैं जी कि वो गलती पर थे। हम देखते हैं कि ये है हमारे पास, ये देख लें, है जी हमारे पास ये। मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव, बहुत से एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि सोसाइटीज़ कोंग वर नॉर्मल, वो नॉर्मल थी अंटिल अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो, चंद हज़ार सालों तक। व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, फिर पॉपुलेशन बढ़ी है तो इसमें पेशरफ्त हुई है एग्रीकल्चर में एंड सेटल्ड लाइफस्टाइल में, और आबाद जो लाइफस्टाइल है उसमें। अगर देखा जाए यहाँ पे तो ना तो कहीं मिस्टेकन हमें नज़र आया और ना ही आबादी जो है उसमें डिक्लाइन नज़र आया है। कहीं पे भी आबादी में डिक्लाइन भी नज़र नहीं आया, जो कहता है कोंग बिगैन टू डिक्लाइन, इसमें भी नहीं है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिस्टेकन अबाउट द पॉइंट भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको NG ही कंसिडर करेंगे। ह्यूमंस हु डेवलप्ड वार लाइक ट्रेड्स, जिन लोगों ने जो जंगी खसूसियात थी, जंग से रिलेटेड, ओके, जो खसूसियात थी उनके पास, उन्होंने वो अपनाई थी ना प्री हिस्ट्री में, तो
वुड हैव एन एडवांटेज, तो उनको एडवांटेज था ओवर दोज हु डिड नॉट, उन पर जिनके पास ये वॉर लाइक ट्रेड्स नहीं थी। ठीक है जी, यानी उन इंसानों के पास, जिन इंसानों के पास वॉर लाइक ट्रेड्स थी, उनको एडवांटेज था उन लोगों पर जिनके पास ये खूबियां नहीं थी, जंगी खूबियां नहीं थी। तो हम देखते हैं जी, इन in view of the above, there seems little reason to assume, there was no reason to assume, there was they do not believe, they do not believe, समझ आ रही है जी, they do not believe ये है, they ठीक है जी, दे डू नॉट बिलीव ये है, सीम्स लिटिल रीजन टू assume, ओके, यानी आप दे सकते हैं ये हो देयर लिटिल रीजन टू assume कि ऐसा फर्ज करने की कोई वजह नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो वो क्या कहता है जी, तो आप इसका ये भी कहते हैं कि आप देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव, ये सीम्स टू लिटिल रीजन टू assume। ठीक है जी, यानी कोई मजबूत वजह नहीं है कि यकीन किया जाए किस चीज पर, दैट द ट्रेस्ट सच एज रेसिज्म, वारफेयर एंड मेल डोमिनेशन शुड हैव बीन सिलेक्टेड बाय एवोल्यूशन एज दे वुड हैव बीन ऑफ लिटिल बेनिफिट इन द प्री हिस्टोरिक एरा, कि उनका प्री हिस्टोरिक एरा में थोड़ा सा फायदा था। ठीक है जी, इस चीज पर कोई पुख्ता यकीन नहीं था या पुख्ता यकीन करने की कोई वजह नहीं थी कि उन्होंने जो वारफेयर के जो अपनी स्किल्स थी उन पर, उनको कोई इसका प्री हिस्टोरिक में फ़ायदा था, यानी उनको कोई फ़ायदा नहीं था। तो आपके सवाल में क्या लिखा जा रहा है, सवाल में ये लिखा जा रहा है कि उन लोगों की निस्बत, जो उन लोगों की निस्बत जिनके पास वारफेयर या वार लाइक ट्रेड्स नहीं थी, उन पर दूसरों को फ़ायदा था। जिनके पास वार लाइक ट्रेड्स थी उनको उन पर फ़ायदा था, जिनके पास वार लाइक ट्रेड्स नहीं थी। तो यहाँ पे तो वो कहता है कि देयर सीम्स लिटिल रीजन टू assume, यानी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि यकीन किया जाए कि जिन लोगों के पास वारफेयर स्किल्स थी उनको कोई फायदा था प्री हिस्टोरिक एरा में, यानी फायदा नहीं था। ठीक है जी, ये तो आपका वो कहते हैं फायदा है, यहाँ पे फायदा नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल्स हु बिहेव्ड सेल्फिशली, और कुछ लोग जो सेल्फिशली करते थे एंड रूथलेसली बिहेव करते थे, खुद गर्जी के साथ, ठीक है, जुल्म के साथ, वुड हैव लेस लाइकली टू सर्वाइव, उनके पास भी इम्कान कम थे कि वो बच ना सके। तो ये भी डिसएडवांटेज है, ये भी डिसएडवांटेज है। उनको भी वो लोग जो रूथलेसली या सेल्फिशली बिहेव करते थे वो भी डिसएडवांटेज में थे। ठीक है जी, तो आप देख लें उनको इन पर एडवांटेज तो नहीं था कोई भी, बल्कि ये तो बजाते खुद डिसएडवांटेज में थे जो सेल्फिशली और रूथलेसली करते थे। तो इस तरह ये स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्शन है, तो इसलिए हम इसको नो लिखेंगे। ठीक है जी, उनको कोई उन पे कोई फायदा नहीं था। बीइंग पीसफुल एंड कोऑपरेटिव इज अ नेचुरल वे फॉर पीपल टू बिहेव, पुरअमन और काबिल तावन रहना एक कुदरती तरीका है लोगों का बिहेव करने का। अगर लोग पीसफुल रहते हैं, कोऑपरेटिव हैं, तो एक कुदरती तरीका है। ठीक है जी, कुदरत ने ये चीज़ें इंसान में डाली हैं कि वो पीसफुल रहे और कोऑपरेटिव रहे। ठीक है जी, और ऐसे ही वो बिहेव करे। हम देखते हैं, इट मेक्स मोर सेंस, ये बात समझ में आती है, टू सी ट्रेड्स, ये ट्रेड्स देखकर, ये खूबियां देखकर। कौन सी खूबियां? कोऑपरेशन हमने पढ़ा है, एग्लिटेरियनिज्म हमने पढ़ा है, एल्ट्रूजम, पाइटी, गुडनेस, काइंडनेस एंड पीसफुलनेस एज द इनेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जी बिल्कुल, आप देख लें, इनेट करेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, तो ये नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स है इंसानों की। तो ये भी वो कहता है, ये देख लें कि नेचुरल वे ऑफ पीपल टू बिहेव, कहता है कि पुरअमन रहना, कोऑपरेटिव रहना जो है ना, और ऐसे ही बिहेव करना अगर लोग करेंगे तो ये एक नेचुरल तरीका है। तो ये बिल्कुल सेम मैच कर रहा है कि ये समझ में आती है कि ये खूबियाँ जैसे कि कोऑपरेशन, तावन करना, इक्विटेबल रहना, जैसे ठीक पाक रहना, हमदर्द रहना या पुरअमन रहना ना, ये इनर करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनेट करेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचुरल खूबियाँ हैं ह्यूमन बीइंग्स की। These were the traits that were prevalent in humans life for tens of thousand years। तो यही तो खूबियाँ हैं जो हज़ारों सालों तक इंसान में वाइड स्प्रेड रहीं, बहुत ज़्यादा रहीं। So presumably these traits are still strong in us, ये अभी भी हम में स्ट्रॉन्ग है। अब देखें, सारे का सारा ही पैराग्राफ मैच कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ रहा है यस। ठीक है जी, ये आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ट्रेड्स। मोर
अपरेंट इन सम मॉडर्न कल्चर्स देन इन अदर्स। नेगेटिव ट्रेड्स जो है ना वो मॉडर्न कल्चर में ज़्यादा वाज़े हैं दूसरों की निस्बत। दूसरे कल्चर्स की निस्बत जदीद कल्चर्स में ये जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं, जो मनफी खूबियां हैं, वो ज़्यादा वाजे हैं। ठीक है जी, तो हम देखते हैं जी कि ज़्यादा वाजे हैं, कहीं पे इस तरह की नेगेटिव ट्रेड्स हैं। तो हम देखते हैं जी यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड्स हैं हमारे पास। बट इफ प्री हिस्टोरिकल लाइफ वॉज नॉट रियली एज ब्रूटल एज हैज़ ऑफन बिन अज्यूम्ड। अगर प्री हिस्टोरिक लाइफ इतनी ब्रूटल नहीं है जितनी उसके बारे में उसको अज्यूम किया जाता है, फ़र्ज़ किया जाता है। वाई डू मॉडर्न ह्यूमन सो बिहेव सो सेल्फिशली एंड रूथलेसली। तो जदीद दौर के लोग जो हैं वो खुदगर्जी से और रूथलेसली क्यों बिहेव करते हैं? परहैप्स दीज नेगेटिव ट्रेड्स शुड बी सीन एज अ लेटर डेवलपमेंट। तो हो सकता है ये जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं इनमें बाद में पेशरफ्त हुई, बाद में डेवलप हुई हूँ, द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। और ये हो सकता है कि ये नतीजा हो माहौलियाती और नफ्सियाती कुछ अनासर हैं उनका। माहौलियाती, माहौल ने ये अनासर पैदा किए हों रुथलेस के या सेल्फिशनेस के, या फिर नफ्सियाती कोई होते हैं कि दिमागी तौर पर कोई अनासर हूँ जिसने इंसानों को सेल्फिश और रुथलेस बनाया। तो हम यहाँ पे देखते हैं नेगेटिव ट्रेट्स आर मोर अपरेंट इन सा। अच्छा, अब देखें कहीं ये नहीं लिखा, ये ज़रूर उसने इन नेगेटिव ट्रेट्स का जिक्र भी किया है, लेकिन ये उसने नहीं लिखा कि ये जो हैं वो मॉडर्न कल्चर में ज़्यादा हैं दूसरों की निस्बत। कहीं पे भी कोई कंपैरिजन तो नहीं हुआ इसका। ठीक है जी, तो ये फिर क्या है, फिर एक दफ़ा देख लें। तो वो कहता है कि नेगेटिव ट्रेट्स आर मोर अपरेंट इन सम मॉडर्न कल्चर्स देन इन अदर्स। कि जदीद जो कल्चर्स हैं उनमें ये नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं वो वाजे हैं दूसरों की निस्बत। तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये सब कुछ है, उसने नेगेटिव ट्रेट्स की बात ज़रूर की है। परहैप्स दीज नेगेटिव ट्रेट्स शुड बी सीन एज अ लेटर डेवलपमेंट। ये हो सकता है कि ये बाद की डेवलपमेंट हो, द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, और ये माहौलियाती और नफ्सियाती फैक्टर की वजह से हो। आप देख सकते हैं कहीं पे भी उन्होंने किसी इस चीज़ का मुवाजना नहीं किया उसका। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जी। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स रिसर्च हैज़ फेल्ड टू रिवील अ लिंक। एक एनिमल पे रिसर्च हुई है जो उसने वो नाकाम हुई है, टू रिवील ये दिखाने में कि कोई राब्ता है। किन में राब्ता है? चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड द इमरजेंस ऑफ एग्रेसिव टेंडेंसीज। के माहौल में तब्दीली का जो एक लिंक है, एक कनेक्शन है किसके साथ? जो जारहाना रवैये हैं उनके आने, जारहाना रवैये के क़याम के बारे में, ज़ाहिर होने और माहौलियात में तब्दीली के बारे में एक लिंक है। और एनिमल पर जो रिसर्च हुई है ना वो नाकाम हुई है ये चीज़ बयान करने में। ठीक है जी, एनिमल पर जो रिसर्च हुई है वो बयान उसने जो किया है वो नाकाम हुई है कि माहौल में तब्दीली और जो जारहाना रवैये हैं उनमें कोई आपस में लिंक है। हम देखते हैं जी कि वो रिसर्च जो है वो नाकाम हुई है कि इन दोनों में आपस में लिंक है कि नहीं है। तो हम जी ये भी देख लेते हैं। रिसर्च हैज़ शोन रिपीटेडली, रिसर्च ने बार बार दिखाया है। यहाँ पे उसने कहीं नहीं लिखा कि ये फेल्ड हुई है रिलीव करने में। हम बाकी देखते हैं। व्हेन द नेचुरल habitats of primate such as apes and gorillas are disrupted, कि जब जो मस्कन है, कुदरती मस्कन है, हैबिटेट्स जो हैं ऑफ प्राइमेट्स जानवरों के, जिनमें से एप्स हैं और गोरिल्लाज हैं, आर डिस्टर्ब, जब इनके मस्कनों को डिस्टर्ब किया गया, जहाँ पे इनकी रहाइश गाहें थी उनको डिस्टर्ब किया गया। एक तो आप देखें माहौल में तब्दीली हुई, तो इसका नतीजा क्या हुआ? दे टेंड टू बिकम मोर वायोलेंट, तो वो अग्रेसिव हो गए ना जी। इसका मतलब है इनका लिंक है कि माहौल, उनके जो मस्कन थे, उनके जो हैबिटेट्स थे उनको डिस्टर्ब किया गया। तो उसका लिंक क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या बने कि वो ज़्यादा जो थे वो वायोलेंट हो गए, हियरार्किकल हो गए, पोसेसिव हो गए। ये तो इसमें तो लिंक है। वहाँ पे तो कह रहा है कि रिसर्च जो है वो फेल हो गई। ऐसा तो नहीं है कि उसने एनिमल रिसर्च हैज़ फेल्ड टू रिवील, उसने लिंक, क्या वो फेल हो गई थी उन दोनों में लिंक जो है उसको रिवील करने में? नहीं, बल्कि उसने
साबित किया है, बार बार, बार बार साबित किया है। तो उसने क्या लिखा है, उसने ये लिखा है रिपीटेडली शोन, ये देखिए शोन रिपीटेडली लिखा है जी। व्हेन द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ प्राइमेट्स, जब कुदरती मस्कन जो है ना प्राइमेट्स के, उनको डिस्टर्ब किया जाएगा, जैसे कि एप्स और गोरिल्ला के मस्कन हैं उनको डिस्टर्ब किया जाएगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा, उनका रवैया वायलेंट एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये तो रिसर्च ये बताती है बार बार कि भाई अगर माहौल का जो तल्लक है ना वो रवैये के साथ है, लेकिन यहाँ पे कहता है कि रिसर्च फेल टू रिवील, कि ये रिसर्च तो ये जाहिर करने में नाकाम होगी नहीं, बल्कि उसने बार बार दिखाया है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो लास्ट ऑप्शन भी है वो भी नो है। तो हम देखते हैं जी, ये था हमारे पास unselfish gene. It was really a nightmare, I think so, a frightful dream for the students to do this kind of passage. But I would suggest you that practice makes a man perfect. The more you get vocabulary, the more you, more you are able to do it handsomely. But if you practice hard, nobody can stop you getting your desired bands. And I really pray for all of you, those who are going to appear in the upcoming exams. Okay, so see you in the next video. Due to the shortage and busy schedule, I am not able to make regular videos. So inshallah, with the passage of time, whenever I have get time, enough time, ample time, so I would make a lot of videos for all of my viewers. Thank you very much for watching my videos. Please subscribe my channel. Thank you very much.